would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So, counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban, Doda on this side, Jammu side, and Anantnag, Pulwama, Shopian, and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandarbal, Srinagar, Badgaon in the valley side, and on the Jammu side, Poonch, Rajouri, and Riyasi. And then the forces move up, so North Kashmir in the upper regions, and also the Jammu and Udhampur, Samba, and the Kathua region. This is what would be the schedule there. If we come to the schedule of Haryana, Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the Festival of Democracy. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now we will have the round of questions. I would request every one of you to please raise your hand, whoever wishes to ask a question. The mic. We will. Excuse me, please. The person in the second row, green T-shirt. Please introduce yourself also, and whoever wishes to ask a question. The mic. We will. Excuse me, please. The person in the second row, green T-shirt. गुलिस्तान और जेके चैनल से हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल उठाया कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई हैं वो बायस्ड हुई हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? और दूसरा ये कि अमरनाथ यात्रा में बहुत ज़्यादा डिप्लॉय वहाँ पर फोर्सेज हैं, तो अब आप लोग कब वहाँ पर फोर्सेज डिप्लॉय करेंगे जिससे लोग इंश्योर हो सके, मतलब कि वो सुरक्षित हैं, महफूज हैं और वोट करने के लिए बाहर निकले? Please give the mic to the media person in the purple shirt. मैं संजय शर्मा हूं आज तक से। मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी 25 को ही समाप्त हो रहा है, 26 नवंबर को। तो क्या वजह है कि इसके साथ ही चुनाव नहीं कराया जा रहा है? तो राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल कुछ ऐसा है, तो निर्वाचन आयोग क्या सोचता है इस बारे में? बहुत आसान है ये कहना और आपका पूछना भी। Please give the mic to the person बहुत ही आसान है पूछना। in the blue shirt. I'll answer. Second last row. हेलो सर, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। हमारा सवाल है कि जम्मू क्षेत्र में हाल के वक्त में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं और आपने कहा भी था अपने चुनाव दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में कि बाहरी शक्ति हो या आंतरिक शक्ति, कोई भी चुनाव को रोक नहीं सकती। इस बार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ी हैं वो कितनी बड़ी चुनौती है? और दूसरा हमारा एक सवाल है कि पहले भी ऐसे
चुनाव कार्यक्रम रहे हैं कि जब एक साथ अवधि खत्म हो रही है, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र की एक साथ खत्म हो रही है, एक आगे पीछे थोड़ा एक ही महीने में, तो आपने बाद में घोषणा किया लेकिन मतगणना एक साथ किया। क्या ऐसी कोई संभावना महाराष्ट्र को लेकर इन दोनों चुनाव के साथ आने वाले वक्त में क्लब होने की है, या महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव अलग होंगे सर? So we'll take more questions, or you would like to respond? एक और Please give the person the last. उधर चले जाइए. So this side we will take some questions. Please try them. Last में black shirt. थोड़ा जल्दी चले जाइए आप प्लीज। तो चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहला चरण 18 सितंबर को, दूसरा 25 सितंबर को और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। हरियाणा के चुनाव की तारीख का भी ऐलान इलेक्शन कमीशन ने किया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में सभी सीटों पर चुनाव होंगे। मतलब आखिरी फेज में, जब जम्मू कश्मीर में आखिरी फेज में चुनाव होगा, यानी कि 1 अक्टूबर को चुनाव होगा, उसी दिन हरियाणा की सभी सीटों पर विधानसभा के चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। मनोज, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगहों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा में एक ही फेज में चुनाव हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए 1 अक्टूबर को यहाँ वोट डाले जाएंगे और क्योंकि सबको पता था, आभास था कि कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है, इसीलिए लगातार चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जननायक जनता पार्टी हो या फिर इंडियन नेशनल लोकदल हो, सभी पार्टियां इस वक्त सड़क पर हैं, जनता के बीच में हैं। आज सुबह ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई घोषणाएं की हैं। करीब 13 से 14 सवाल उन्होंने कांग्रेस से पूछे हैं। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हम इस वक्त चंडीगढ़ हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय में भी हैं, जहां हलचल तेज है और कभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, ये यहां पर पहुंचेंगे और जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में बताएंगे। हरियाणा में जो सीधा मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही बताया जा रहा है। 90 विधानसभा की सीटें हैं और फिलहाल कांग्रेस के पास 31 सीटें उन्होंने जीती थी। फिलहाल उनके पास 30 विधायक थे, लेकिन किरण चौधरी के जाने के बाद ये संख्या 29 बची है। बीजेपी के पास फिलहाल 41 विधायक हैं और जननायक जनता पार्टी के पास 10 विधायक हैं, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल के पास 1 सीट है। तो क्या 10 साल का जो शासन है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगा या कांग्रेस इस बार बदलाव कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। इस वक्त कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन चला रही है हरियाणा में, तो बीजेपी भी और खुद मुख्यमंत्री सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि उन्होंने अपने 10 साल के शासन में क्या किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो बताएं। तो बड़ी दिलचस्प ये लड़ाई है और बहुत जल्द यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचेंगे। जी, आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव हरियाणा का होगा वो बहुत दिलचस्प होगा, अच्छी लड़ाई हो सकती है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। लेकिन चुनाव आयोग ने, मनोज, एक दिन में ही 90 की सीटों पर चुनाव का ऐलान किया है। तो क्या ये इतना आसान होगा? क्या अलग अलग चरणों में चुनाव होते तो पार्टियों के लिए या राज्य में जिन क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में वोटिंग होती तो वो आसान होता? देखिए, हरियाणा में अगर बात करें विधानसभा चुनाव की या फिर लोकसभा चुनाव की बात कर लें, आमतौर पर एक ही चरण में चुनाव होता है क्योंकि कानून व्यवस्था का इस तरह का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहा है, इसलिए एक ही चरण में हमेशा से चुनाव होते आए हैं और राजनीतिक दल इसके लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं। तो 1 अक्टूबर को जब चुनाव होगा तो पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव होने जा रहा है और तैयारी सभी दलों ने पहले से ही कर रखी थी। और हाल ही में जब चुनाव आयोग की टीम ने विजिट किया था, यहां चंडीगढ़ उनकी टीम आई थी, तब सभी दलों ने अपनी अपनी बात वहां पर रखी थी। ज्यादातर जो राजनीतिक दल थे उन्होंने यही कहा था कि जो चुनावी खर्च की सीमा है इसे कुछ बढ़ाया जाए और कुछ जो पोलिंग की जो मतदाता सूचियां हैं उनमें कुछ खामियां थी, उनको लेकर भी सवाल उठाए गए थे। तो कुल मिलाकर इलेक्शन मोड में हरियाणा सरकार पहले ही थी, हरियाणा के तमाम दल भी पहले से ही इलेक्शन मोड में
चल रहे थे और अब जो प्रक्रिया है, इंटरनल जो सर्वे करवा रही थी तमाम पार्टियां, वो चल रहे थे, वो भी लगभग फाइनल हो गए हैं। और अब टिकटों का एक तरीके से बारी आएगी कि कौन सी पार्टी किसको कहां चुनाव लड़ाती है। बहरहाल हरियाणा में अगर बात करें तो जानकारी और दीजिए, समाज पार्टी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा हरियाणा में बदल दिया था, क्या डेट अनाउंस हो गई। हम इलेक्शन कमीशन का स्वागत करते हैं। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। लेट होगा और आपको लगता नहीं कि पहले हो गया? बीजेपी वालों की पोल खुल गई ना। अभी मुख्यमंत्री और कह रहे हैं कि 50,000 पक्की नौकरी दे देंगे इलेक्शन से पहले। एक तरफ तो नौकरी के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ इलेक्शन कमीशन पे डलवा रहे हैं। ये सब झूठ के पुलिंदालन के पोल। चल भाई धक्का ना मारो, अब आ जाओ। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को आप सुन रहे थे। मेरे सहयोगी साहिल सोहेल हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से। साहिल, लोग इंतजार कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव हो। क्या जम्मू कश्मीर अब चुनाव के लिए, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया है, तैयार है? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव को लेकर तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और आज सुबह कि जिस तरह से प्रशासन ने भी जो ट्रांसफर और पोस्टिंग के ऑर्डर्स है वो लगातार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब SKIC श्रीनगर में जून की 20 तारीख को पहुंचे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये जरूर कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और जिस तरह के रुझान सामने आए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी तारीफें की थी और कहा था कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव के लिए तैयारियां की गई है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक डेलीगेशन, जिसका नेतृत्व खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे थे, वो श्रीनगर पहुंचे थे। 2 दिन के दौरे के दौरान उन्होंने यहां पर प्रशासन के साथ मुलाकात की, सिक्योरिटी सिचुएशन पे भी खास बातचीत इलेक्शन कमीशन की हुई और 2 दिन पहले दिल्ली में होम सेक्रेटरी अजय भल्ला के साथ भी इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई थी।